Good morning, everyone. Welcome to the class. Today, we are going to start with the next segment of the chapter Dual Nature of Matter and Radiation. In this chapter, we have already discussed the topics dual nature of radiation, means radiation has wave nature as well as particle nature. Now, we are going to start with the discussion of the matter, means particles or the material particles बोलें या फिर particles of the matter of which they are made of, electrons and protons की बात कर रहे हैं. ठीक है. Such particles exhibit wave nature. They have wave nature, means if these particles are in motion, so they must be associated with a wave called de Broglie wavelength, de Broglie wave. So this kind of study we are going to start. So a scientist in 1924 named Louis de Broglie or Louis Victor de Broglie, a French physicist, gave the idea about the dual nature of matter. Means matter is already a particle, but it also exhibit the wave nature as well as. ठीक है. So that kind of study we are going to start. So that idea, that hypothesis called de Broglie hypothesis, given by the scientist French physicist de Broglie in 1924. So let us have a brief overview related to this particular concept. De Broglie hypothesis. So de Broglie hypothesis was based on the fact that a wavelength, बेसिकली अगर हम बात करें तो जो de Broglie है उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या दिया इन्होंने? डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर. ये जो कॉन्सेप्ट दिया बेटा इन्होंने, वो स्पेसिफिकली इट वाज बेस्ड ऑन टू रूल्स, टू फैक्ट्स. वन फैक्ट वाज that Einstein's energy equation, mass energy equivalence relation, E is equal to mc square. This is the radiation, energy in the form of radiation, energy E in the form of radiation, and this is mass in the form of matter. So energy or the radiation is related to matter, matter is related to energy. Means mass and energy, अगर हम बात करें mass and energy are one and the same thing. They are the two sides, they are just like a two sides of a single coin. So अकॉर्डिंग टू दिस एक तो हमारा जो मेन इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था दैट वाज, इन्होंने इसको रेफरेंस माना E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर को. उसके साथ साथ डी ब्रोगली ने दूसरा ये कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर लव्स सिमेट्री. मीन्स बहुत सिंपल सी बात है. नेचर लव्स सिमेट्री का मतलब है कि अगर पार्टिकल का अगर रेडिएशन, इफ रेडिएशन has dual nature, if radiation has dual nature, that is particle as well as wave nature, then that particle must be having dual nature. That is, particle तो ये ऑलरेडी है ही, particle nature, it has finite mass, and wave nature. So that was the two bases of this particular hypothesis, and on the basis of these two hypotheses, de Broglie arrived at a conclusion that wavelength associated can be calculated with the help of a formula. इधर हम लिखेंगे de Broglie wavelength associated with a particle या of a particle of mass m
and of mass m and moving with velocity v, moving with velocity v is given by lambda is equal to h Planck's constant divided by momentum of the particle, that is p. So that was the de Broglie hypothesis basically. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं lambda is equal to h over mv. This is how we can write this particular equation, and this equation can be derived on the basis of two results. One was by considering the photon as an electromagnetic wave of frequency nu, means energy is equal to h nu, so it is equation number 1, and another Einstein's equation E is equal to mc square. On these two, on the basis of these two equation, this equation can be derived. यहाँ से हम लिखेंगे बेटा h nu is equal to mc square. Is that clear? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? Now it can also be written as, आप यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिएगा कि कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं आप देखिएगा लैम्डा को, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से लिख सकते हैं c by lambda, and this is h c by lambda, that is equal to m c square. Eliminating c from both sides, आपके पास है h by lambda that is equal to m into c. And what is m into c? That is the by electromagnetic radiation moves with the velocity c, means जो फोटोन हमने कंसीडर किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, एनर्जी उसके पास ये है, m उसका मास है, c उसकी वेलोसिटी है, उसका ये मोमेंटम होगा, दैट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. इसको हम बेटा p लिख सकते हैं. इसका मतलब h by lambda, h upon lambda will be equal to momentum, और वेवलेंथ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड एज h over p, जिसको हम मोर ओवर ऐसा लिख सकते हैं h over m into c, और h into m, h डिवाइड बाई m into v. v से रिप्रेजेंट करें या फिर c से रिप्रेजेंट करें. दिस इज हाउ वी कैन डिराइव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. Now the next topic is de Broglie wavelength of an electron. Basically by considering the electron of mass m finally moving with a velocity v if accelerated with a potential capital V, potential difference capital V. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर से लिखते हैं, वो एनर्जी हमारे पास ई वी होगी. देखो वर्क डन W is equal to QV होता है, and if you are talking about work done in case of electron, if it is moving against या due to electric field तो EV आ जाती है. तो इसी को हम, और ये ड्यू टू मोशन है तो इसी को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी EV हमारे पास आती है. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV सेट इज इक्वेशन नंबर 1. एंड व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम? से काइनेटिक एनर्जी आपके पास और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं. 1/2 mv स्क्वायर बाई mv स्क्वायर. ये बेसिकली हमने उसमें भी पढ़ा है. ये हमारे पास ऐसे लिख दो ना, मैं इसको mv स्क्वायर 11th क्लास में, तो m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट वुड बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना बनाइए, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई 2m. तो m इंटू में v को हम क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम का स्क्वायर. m इंटू वी को मोमेंटम और इसका जो स्क्वायर है उसको p स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2m. तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो p स्क्वायर आया मोमेंटम, दैट इज 2m मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी. अब मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखता हूँ बेटा? के ई से लिख दीजिएगा या सिंपली के से लिख दो, क्योंकि इसको लिखना आसान होगा. लेट अस राइट इट विद m मल्टीप्लाई बाई के, व्हिच इंप्लाइज p इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2mk. तो मोमेंटम सेट इक्वेशन नंबर 2. मोमेंटम अब हम बात करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p. व्हाट h इज? p दैट इज 2mk. सो दिस इज द फार्मूला. काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर द रूट ऑफ 2mk. और इसको और थोड़ा सा शॉर्ट आउट हम करें तो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा दैट लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2m
2m, k इज E इंटू वी, तो ये बना ई वी, ये है स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज, प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है बेटा, मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, वी रह जाएगा बस हमारे पास। तो अगर ये सारा डेटा अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो जैसे हम गोना पुट इट ओवर हियर, दैट इज अगर हम पुट करें 6.63 10 रेज़ टू द पावर -34, ये हमने h पुट किया, अंडर द रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 पुट किया, राइट, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पुट किया बेटा आपको, आपके सामने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 और मल्टीप्लाई बाय कैपिटल V। इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन? यस। इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है एक कॉमन रिजल्ट की फॉर्म में ये आ जाता है, लैम्डा E इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ V। सब कुछ सॉल्व करके 12.27 हमने लिख दिया, मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, ये यहाँ पर आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो 1.22 या 1.23 इंटू 1.23 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ V नैनोमीटर, यहाँ पर आपके पास ये वेवलेंथ आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.2 ये राउंड ऑफ हम कर सकते हैं इसको 23 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ V नैनोमीटर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक कॉमन ऐसा बन गया बेटा जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया है वो पुट करके डायरेक्ट हम उससे रिलेटेड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सो दैट इज द डी ब्रोगली फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, दैट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फार्मूला। Now let us start the discussion with few of the formulas that we have already studied in this particular chapter. One was lambda is equal to h by mv. Everybody knows h by p, that is lambda is reciprocal to m, lambda is reciprocal to velocity of the particle, ठीक है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन के केस में इन टर्म्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास जो फार्मूला है बेटा वो बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर अंडर द रूट ऑफ 2mev एंड दैट इज इक्वल टू दैट कौन सा कहाँ से आया, अंडर द रूट ऑफ 2mk से आया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में तो 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ V आर्मस्ट्रॉन्ग वोल्ट आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट इज अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं है और कोई चार्ज पार्टिकल है देन लैम्डा क्यू इज h ओवर अंडर द रूट ऑफ 2mqv। ये क्यू क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो सकता है आपके पास, प्रोटॉन हो सकता है, आपके पास ये क्या हो सकता है, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल हो सकता है, आपके पास ये ड्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं मीन मास, अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का मास रखें, चार्ज प्रोटॉन का रखें तो हम वेवलेंथ प्रोटॉन की निकाल सकते हैं। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का मास रखें, अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखें तो भी हम यहाँ से वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। सम मोर कंक्लूजन्स कैन आल्सो बी ड्रॉन। देखिए बेटा इसमें जो जनरली क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो है कि आपको देयर आर टू डिफरेंट पार्टिकल्स और उनका कंपेयर करने का कोई सा भी एट्रीब्यूट, जैसे आपको उनका मास का रेशियो गिवन है, ठीक है ना। अभी हमने फार्मूला जो ड्राइव किया आपको मास का रेशियो गिवन है, चार्ज का रेशियो गिवन है, ठीक है, एंड बोथ द पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड एट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, मान लीजिएगा आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, दिस इज अल्फा पार्टिकल, एक आपको दिया हुआ है कि भैया अल्फा पार्टिकल है और एक आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दो पार्टिकल हैं आपके पास और दोनों के दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पर एक्सेलरेट किए हैं, सेम वी है दोनों के केस में। तो कैसे कंपेयर करोगे उनकी वेवलेंथ को, कंपेयर वेवलेंथ मींस लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन आपको कैलकुलेट करना है इस केस में। तो इसके लिए हमें इनके मासेस का रेशियो जानना बहुत जरूरी है। मासेस के रेशियो की बात कर लेते हैं। लैम्डा क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें ये रेशियो कैलकुलेट करना है तो लैम्डा लिख लेते हैं पोटेंशियल वाला h अंडर द रूट ऑफ 2mqv, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पोटेंशियल सेम है, मास और चार्ज वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है और h हमारे पास कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ m इंटू क्यू। यहाँ से हमारे पास आया लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सीधा सा इक्वेशन ये बनेगा 1 बाय, देख लीजिए, 1 बाय अंडर द रूट ऑफ m अल्फा q अल्फा डिवाइड बाय 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ m प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं m ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय m ऑफ अल्फा अंडर द रूट ऑफ दैट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, देख लीजिए लिखा हुआ है, एंड q ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय, देख लीजिए, q ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय q ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से रेशियो हम कैलकुलेट कर पाते हैं इन टर्म्स का। अब एज वी नो, देखिए बहुत अच्छे से हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में क्या रिलेशन है, उनके मासेस में और चार्जेस में क्या रिलेशन है, एवरीबॉडी नोज। देखिए अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन क्या है आपके पास, प्रोटॉन आपके पास क्या है, प्रोटॉन 1h1 और अल्फा पार्टिकल क्या है आपके पास 2he4। तो अगर इनको कंपेयर करें तो ये 4 टाइम्स है, इनको कंपेयर करें तो ये 2 टाइम्स है, मींस चार्ज इज 2 टाइम्स। m ऑफ p डिवाइड बाय m ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास जो है इसका 4 टाइम्स होता है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो मासेस का जो रेशियो है वो 1/4 आता है। इसी तरीके से हम चार्जेस भी लिख सकते हैं, चार्जेस का रेशियो भी हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एंटिटी सेम एंटिटी से बने हुए पार्टिकल्स हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर ये 2 है, ये तो 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 था, ये 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करें अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में तो आपके पास जो आंसर बनेगा mp ओवर m अल्फा, mp ओवर m अल्फा इज 1/4 मल्टीप्लाई बाय qp ओवर q अल्फा इज 1/2, दिस इज 1/8 मीन्स 1/√8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 8। तो आपके पास जो आंसर बना क्या बना बेटा, लैम्डा ऑफ अल्फा रेशियो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, that would be equal to 1 ratio under the root of 8. This is how we can calculate. So if we know the ratio of masses of these particles and the ratio of charges of these particles, then the wavelength ratio can easily be determined with the help of this particular result. Have a numerical on the screen. Calculate the de Broglie wavelength of the electron when accelerated with a potential of 10 volt. So very simple question is there on the screen. We know देखिए पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन है, पहली बात तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपको 100 वोल्ट दे रखा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ v आर्मस्ट्रॉन्ग, और नैनोमीटर में निकालना है तो 1.227 या 1.23 इंटू डिवाइड बाय v आर्मस्ट्रॉन्ग। सो इन दिस केस अगर आप वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो 1.23 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 100 अगर हम पुट करते हैं तो बहुत सिंपल सा रिजल्ट है बेटा। ये सॉरी आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये नैनोमीटर होगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं 1.23 डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.123 नैनोमीटर विल बी योर आंसर, राइट। सी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। One more numerical on the screen. The question is very easy and simple. For what kinetic energy of neutron will the associated de Broglie wavelength be 1.40 into 10 raised to the power -10? Means आपको kinetic energy कैलकुलेट करना है, wavelength given है। तो देखिएगा फार्मूला everybody knows. The formula for wavelength is, 2 पार्ट है बेसिकली क्वेश्चन के, तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। वेवलेंथ लैम्डा इज रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करनी है अंडर द रूट ऑफ 2m qv हम लिखते हैं, qv क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, तो 2m के हम लिखते हैं, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ से बेटा अगर हम स्क्वायर करते हैं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे के हैं क्वेश्चन में, कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। ये अभी हम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के आपके पास क्या होगा, h स्क्वायर
divided by 2m lambda square. Putting all the values here and solving it, h is 6.63, 10 raised to the power minus 34, square of that divided by 2, multiply by mass of neutron 67 into 10 raised to the power minus 27 kg, multiply by wavelength lambda is given 1.40, 10 raised to the power minus 10 and the square of that. After solving it, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन पार्ट है और इसमें जो आंसर आपको मिलने वाला है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6.686 into 10 raised to the power minus 21 मीटर. सॉरी, वी विल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं ना आप, काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इन जूल. इसको कन्वर्ट करेंगे आप बाय डिवाइडिंग इट विद 1.6 into 10 raised to the power minus 19. ठीक है, तो यहां से आंसर जो आपके पास आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और आंसर होगा, इट वुड बी, सॉल्व कर लीजिए बेटा, आप स्क्रीन पर है आपके सामने, डू इट फास्ट. शायद निकाल लिया होगा आपने. इट वुड बी 4.174, अप्रोक्सीमेटली 4.174 into 10 raised to the power minus 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आप चेक कर सकते हैं जो आपने कैलकुलेशन की है स्क्रीन पर, उससे आप. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट अस हैव सेकंड पार्ट ऑन द स्क्रीन. Read the statement carefully. Also, de Broglie wavelength of the neutron in thermal equilibrium with the matter having average kinetic energy E is equal to 3/2 kT. अब जो ये वाला K है मैंने थोड़ा अलग लिखा है. बेसिकली ये आपके पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 into 10 raised to the power minus 23 होती है. तो न्यूट्रॉन के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है. बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी दे रखी है 3/2 kT. तो पुट कर दीजिए ना फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी में 3/2 kT पुट कर दीजिएगा. स्मॉल के आपके पास है तो लैम्डा वुड बी h ओवर अंडर द रूट ऑफ 2mk काइनेटिक एनर्जी एंड इट वुड बी अंडर द रूट ऑफ 2m व्हाट इज k 3/2. ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय t. t इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एलिमिनेटिंग 2 you are left with h divided by 3mkt. देख लीजिए 3mkt बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बार बार बता रहा हूं मैं. दिस केस डिफरेंट फ्रॉम द पर्टिकुलर अर्लियर वन, वो काइनेटिक एनर्जी था, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है. बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड टेम्परेचर T इज आल्सो गिवन. टेम्परेचर T आपको गिवन है यहाँ पर 300 केल्विन, राइट. मास ऑफ द न्यूट्रॉन ऑलरेडी नोन है. K कांस्टेंट आपको ये दिया हुआ है, K इज गिवन. By putting all these values and if you go for calculation then it would be approximately 1.45 into 10 raised to the power ये आएगा आपके पास -10 मीटर, -10 मीटर, और आप इसको कह सकते हैं 1.45 आर्मस्ट्रॉन्ग इज द wavelength. So this is how we can solve this numerical also. Now let us have another numerical on the screen. Electrons are emitted from the cathode with negligible work function. One photon of wavelength lambda is incident on it. एक कैथोड है उस पे वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट कर रही है, ठीक है. और वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फंक्शन 0 है. कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिंक्ड विद द वेवलेंथ. तो बेसिकली जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसके लिए हमें क्या करना है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv. तो वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ है उसकी विद वर्क फंक्शन मतलब मेटल का वर्क फंक्शन 0 है. वहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी वेलोसिटी सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी. वी विल पुट इट हियर. वी विल बी गेटिंग द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो उसके लिए हमें वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा वर्क फंक्शन वाले टर्म से. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv² दैट इज इक्वल टू h nu माइनस phi नॉट. ये बेसिकली आपके पास आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है. phi नॉट को आप 0 अगर पुट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ से बनेगा हाफ mv² दैट इज इक्वल टू h nu. तो न्यू को हमने लिख दिया c बाई लैम्डा.
यहाँ से बेटा वेलोसिटी v कैलकुलेट कर लो, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2hc ओवर लैम्डा m एंड अंडर द रूट ऑफ दैट आपके पास वेलोसिटी v आ जाएगा। नाउ वी आर टू कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास फॉर्मूला h डिवाइड बाय m अंडर द रूट ऑफ v आप पुट करेंगे 2hc डिवाइड बाय लैम्डा m इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हमारे पास ये आंसर आता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आंसर बनेगा आपके पास दैट, सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो बहुत आसानी से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दिस इज h एंड दिस इज, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए ना, ये आपके पास m है, इसको उल्टा कर लीजिए, ये आपके पास आ गया लैम्डा m डिवाइड बाई ये आपके पास आ गया अंडर द, वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पर कई बार समझ में नहीं आता है हमें, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इससे ये कटेगा तो यहाँ रूट h आएगा, इससे ये कटेगा तो यहाँ रूट m आएगा, तो रूट m को हम इसके साथ शामिल कर देते हैं, ठीक है, और रूट h को हम इसके साथ शामिल कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ हमने कहा आपसे रूट h आएगा, रूट h आएगा अंडर द रूट ऑफ लैम्डा m एंड डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। ये m यहाँ से एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर आपके पास अंडर द रूट ऑफ m आएगा, ठीक है। ये आपके पास 2h एलिमिनेट हो गया, c इसको कंबाइन करने पर विजिबल ऑन द स्क्रीन, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, लैम्डा ई आपके पास बनेगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, कोई इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, h लैम्डा बाई 2mc, h लैम्डा अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2mc would be the answer of this particular question. So such type of numericals, ये तो एक थोड़ा वो था कॉन्सेप्ट रिलेटेड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा हम इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कर सकते हैं। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक अब हमारे पास लेफ्ट है, दैट इज डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज द कंफर्मेशन टू द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन के लिए बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और वो वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटल डेटा, इस थियोरेटिकल रिजल्ट जो लैम्डा यहाँ से आता है इलेक्ट्रॉन के लिए एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज, वो सेम आता है, एंड दैट इज डिपिक्टेड इन डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।